नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जयनिहार के भी और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों का है नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय जय हिंद। And to all our viewers in China, konnichiwa, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abariako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Ji. Pradeep ji. Oh, and by the way, these headers are for the show with Mr. Mohsin Haider. I don't know why you guys are putting this right now. This is not for this show. May I please remind you? Thank you. Thank you so much. So nice of you. जी हाँ प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात अभी ये आ रही है, दो खबरें आ रही हैं। एक तो जी वो जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उद्धव जी, प्रियंका जी, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात करी थी। Yes, yes. इम्पीचमेंट मोशन में आप कैसे आगे बीच में? Correct. Forget the fact that it is a pro-Hindu judgment or not a Hindu judgment. If you are aggrieved by a high court judgment, you go to the Supreme Court. बिल्कुल। You don't just join a motion for impeachment of a judge. I mean, this is crazy, absolutely crazy. The other thing is, दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब ट्रंप साहब जो हैं उनके खिलाफ अब एक अमेरिका में बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है, अमेरिकन कांग्रेस में और सेनेट दोनों में। वहां यह कहा जा रहा है कि आप इतिहास में आपका नाम रोशन होगा कि हिंदुस्तान को आपने अमेरिका से दूर कर दिया। दूर ही नहीं किया, आपने भगा दिया। दिस इज व्हाट representatives from both the Democratic Party and the Republican Party. It's a bipartisan issue. They're hitting down at Trump. What the hell are you doing? And there are some people who have actually gone to the extent of saying, is it because the Pakistanis have bribed you by investing in your cryptocurrency business, of which you have made Field Marshal Asim Munir in charge? Pradeep ji. बिल्कुल। और not only that, the photograph of Prime Minister Modi and Putin in a car. Yes. Sitting in a car is being displayed all across US to show that what we have lost. We have lost something huge. We have made Prime Minister Modi, who was with us, to go and sit with our adversary. Right back. Yes, back to the adversary. He's gone back to our adversaries. And that's a great loss. And what the cost of Mr. Trump decisions. Yes. That's what they say. And Putin, Modi in the same car is going around US in a big way, in a big viral way. Gee. So they have lost something great. That is what the US believes. The US policymakers believe that Modi moving out of the table is not good sign for us. Absolutely terrible. And इससे पहले ओबामा भी इस विषय में चर्चा किए थे। उन्होंने कहा कि Mr. Modi, you have literally taken. In fact, Mr. Modi has walked out of the table. He's refused to sit at the same table with you because of this acts of yours. There was also Obama, and that Obama जितने अगल बगल के लोग हैं सबका यही कहना। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन And one of the persons, I think he was the former chief, what do you call? तो उनका कहना है कि former policy maker, he said Asif Munir should be tried, he should be hanged. That is what President Trump's statement should be, stand should be. Asif Munir is a war criminal. I mean, people have gone all out in all lengths to talk about all these kind of things because they are uneasy with the alliance with Pakistan. You see, the trouble is at the moment it's not as if the situation suits India. It doesn't. सीधी बात है, हमारी एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को इफेक्ट हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 50% जब टैरिफ लगेंगे तो एक्सपोर्ट तो इफेक्ट होंगी। So but we are forced to go and look for other alternatives. भाई, अरे भाई ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में कोई भी, जैसे रघुराम राजन बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना जैसे पाकिस्तान ने किया वैसे हिंदुस्तान करना चाहिए था। अरे आज मोदी जी बाहर हो जाते, अगर आज मोदी जी किसी भी तरीके से ट्रंप के सामने झुक जाते जैसे कि वो आसिम मुनीर और वो शहबाज शरीफ झुक गए। सीधी बात है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, भारत में पार्लियामेंट है। भाई बीजेपी के लोग ही मोदी जी को बोल देते भाई साहब नमस्कार। एंड वी रिस्पेक्ट, इंडिया रिस्पेक्ट्स एंड वोट फॉर मोदी बिकॉज मोदी रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, कि ताकत है भाई। हिंदुस्तान जो है वो ताकतवर देश है। आप जाकर के रघुराम राजन, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, he says look at how smartly Pakistan has done. Smartly? They have sold off their entire sovereignty to
not just to the USA. No, not to USA. They have sold their sovereignty to the Trump organization. Is that what Mr. Raghuram Rajan wanted India to do? You got to be kidding me. Anyway, we've got our dear old friend Mr. B.N. Kumar with us. Let's go straight across to him. And we are waiting for other people. B.N.K., how are you? Can't hear you, B.N.K. आपकी आवाज नहीं आ रहा बीएन कुमार जी. आना तो चाहिए अभी. Now it's come. Now it's come. So B.N.K., what do you think? Yeah. What do you think? Amit Shah actually taunting Uddhav Thackeray कि भाई आप you are Bala Saheb Thackeray's son and look at whom you are standing with. 120 MPs have signed on an impeachment motion against Justice Swaminathan of the Madurai bench of the Madras High Court just because he gave a couple of orders which the DMK did not like. I mean, what is this new norm? That means you got a template. Next time any judge gives an order against you, you will not go to the Supreme Court, but you will file an impeachment motion. BNK Sahab, ab aap bataएं, please go ahead, sir. That's true. Actually, if you have any issue with any judgment, you should go to Supreme Court. There is a judicial system that has been laid out by the Yes. Constitution. For every small thing, if you start fighting these impeachment motions, there will be no end to it. Yes. That is not the way to do it. But in any case, into this, whatever judgments have been given, whatever petitions have been filed, I don't think we should bring in the issue of Hindu-Muslim element into the judicial system. That's my personal and strong opinion. Absolutely. But the Deepam issue is something that is going to be a big political issue in the coming days. Because even DMK knows that the legal remedy to High Court decision lies in the Supreme Court and not impeachment. आप सुप्रीम कोर्ट जाकर आप जस्टिस मांग सकते हो. आप इम्पीच करने एक जस्टिस को आप इम्पीच करो, स्वामीनाथन जी को आप इम्पीच करके क्या दिखाना चाहते हो? You are playing the appeasement politics. Now you can't blame the BJP for this now. This DMK was the first mover. DMK was the first mover of moving the motion of impeachment. And we had Priyanka Gandhi out there, all the secular people out there. Then BJP will raise this issue and say that they are raising the issues of Hinduism. B.N. Kumar ji. नहीं, ये religions को लेकर there have been statements and politicization from all parties. I don't blame only DMK. Even BJP has done it. They have politicized Ram Mandir. They have politicized the Ayodhya crisis. वो तो करते आ रहे. So it is if it is a political battle, let them fight it out politically in political streets. But I don't think, as I said earlier, impeachment is the right way to do it. You go to the Supreme Court. If there are any politics about it, you attack the other party politically, because obviously, since it is a pro-Hindu, perceived as a pro-Hindu kind of order, obviously the BJP element will definitely try to politicize. I think that's what they want to trying to. BJP because trying to today, if you politicize. see the progress of BNK BJP Sahab, please be from, fair. recent Bihar onwards. BNK Sahab, please be fair. To Please. Bengal. So B.N. Kumarji, please be fair. It is not the BJP who has brought in an impeachment motion. This No, it is not. Subramanya It is Hill, not. that is the Madurai Hill, belongs to the Subramanya Swami temple, that is the Murugan temple, as per the 1931 Gazette. Yes. Now, my point is, what did the judge say? This is a 1500-year-old tradition, or a 1000-year-old tradition, or a 500-year-old tradition. Why are you stopping it now? What is the problem? Just because the Sikandar Dargah, they have said, no, we won't allow it. And by the way, the Sajda Nasheens of the Sikandar Dargah, the Muslims, they have come forward and said, we have no objection. हमें तो बोला गया था करने के लिए DMK सरकार द्वारा. My point is, what is the matter with the DMK, BNK? What are they doing? Why do they keep attacking Hinduism? Some guy calls Hinduism क्या सनातन क्या है वो? It's like COVID, it's like measles, it's like smallpox. Hey, पागल हो. Stalin Jr. says all that. What is the matter with them? Now, when you say all that, you are handing over weapons into the hands of the BJP. This is something that has fallen into the BJP's lap, and they will certainly use it. Yeah. BNK Sahab. definitely, because they have obviously scared of the political advancement of BJP. BJP has grown very well in the north, and slowly they are moving towards the south. That's right. They have a very strong presence in Karnataka. They are increasing their presence in Kerala. They are unable to fight it out. Tamil Nadu also is another good territory.
the way the Vice President of India has been elected from Tamil Nadu, I don't see politics there, but it is definitely an appeasement because this has been even Congress has been doing that. Yes. So traditionally, the presidents and vice presidents have been from the south. So this is one way of looking at it. But definitely, DMK is very nervous. I think what they have done, even the very immature action, I should say, from the Congress, it is a knee-jerk reaction. They should have fallen into this trap. They should behave in a measured manner. Look at this aspect in a much broader way and not politicize it in a very narrow-minded way. And as you said, RKB, the Vidarga people have no objection. Who are you and me to oppose it? सर nobody has any they want to live objection. amicably, अरे सर मैं आपको फिर peacefully. बोल रहा हूं बीएन कुमार साहब, मदुरई में मुसलमानों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. वो कहते हैं कि भैया ये हजारों साल पुरानी परंपरा है, करो. किसने मना किया है? लेकिन जब डीएमके का डंडा पीछे से पड़ता है सरकार का, है कोर्ट पे जाओ, ये करो, वो करो, क्या करेगा बेचारा? And what is the harm? What is terrible? What is the harm of if the judge asks the central forces to come? Because local police अगर Prevented order them. को नहीं नहीं, local prevented them. Yes, local police is not listening to the order or not following the order or not, incorporating the order. The judge has to order central forces. What's wrong in that? DMK strongest objection, central forces को बुला लिया. तो कैसे करेंगे? How are you going to enforce the order? BN Kumar ji. Then it is very essential कि ultimately these kind of statements that they make, it is bound to create communal issues when there are no issues. You're trying to create artificially these issues. It's bound to affect the law and order. I don't see anything wrong in electing the central forces or asking the Home Ministry. But all to I am deploy surprised central about forces. is, in spite of the fact, और ये सवाल अब जनाब निजामुद्दीन रहीम साहब के लिए. निजामुद्दीन रहीम साहब नमस्कार, आपका स्वागत है सर शो में. थैंक यू सो मच सर. नमस्कार निजाम साहब, ऑलवेज ए प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो. मैं बीएन के साथ जरा ध्यान से सुने, लेकिन सवाल ये निजाम साहब के लिए. मेरा ये कहना है कि प्रियंका गांधी जी जो हैं, राहुल गांधी जी जो हैं, हमारे खड़गे साहब जो हैं, उनके आसपास एक बहुत बढ़िया टीम है, लीगल टीम है. किसी को जाकर के उनको एडवाइस करना चाहिए था कि सर इसमें आप मत पड़िए, भले आप अलायंस में हैं, लेकिन हाई कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है तो उसका रेमेडी लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट. तो डीएमके सरकार को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए था नहीं, गए हैं. मेरा यह कहना है कि आपकी पिटीशन पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और आपने इंपीचमेंट मोशन फाइल कर दिया कि इस जज को ही बाहर निकालो. निजाम साहब, ये तो मुझे लगता है कांग्रेस को ट्रैप कर दिया है सर. इतना बढ़िया भाषण दिया, मैं खुद ये बोल रहा हूं निजाम साहब, इतना बढ़िया भाषण दिया प्रियंका गांधी ने, हाय हाय हाय, तबीयत खुश हो गई. मुझे इंदिरा जी की याद आ गई. मैं सच बोल रहा हूं आपको, जिस प्रकार हंसते हुए उन्होंने नेहरू जी के बारे में बात करी, उन्होंने बाकी हर चीज के बारे में बात करी, मोदी जी को लेकर के, वंदे मातरम के ऊपर जो उन्होंने बोला, और उसके बाद शाम को डीएमके वाले उधर ले गए. मुझे लगता है ये तो ट्रैप किया है सर. निजाम साहब, आप सतर्क हो जाइए, कांग्रेस को ट्रैप किया गया है डीएमके द्वारा. अब आप बोलें सर प्लीज. नहीं, मैं पहली बात तो चूंकि जुडिशरी का मैटर है, मैंने उस पर कोई लीगल, चूंकि ना मैं एडवोकेट हूं ना मैं लीगल इसको देखता हूं. मेरे पास पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल बहस हो सकती है, उस पर मेरे अपने विचार होते हैं. लीगल के लिए कांग्रेस के पास खुद का बड़ा लीगल डिपार्टमेंट है, वो देख रहे हैं. दूसरी चीज, जहां तक एलआई की सरकारें होती हैं, वहां हमें बहुत बार ऐसे कई विषय होते हैं जिसको हम अपने एजेंडे में रखने के बावजूद नहीं कर पाते हैं. चाहते हैं करना लेकिन नहीं कर सकते. तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता. मैं चाहता हूं कि जो दूसरे विषय हैं उस पर हम आपसे. निजामुद्दीन जी, जब प्रियंका गांधी जी ने इस प्रकार से संबोधित किया कि नेहरू जी के जितने गलतियां हैं, मोदी जी आप उसको लिस्ट कीजिए, आप एक किताब बनाइए और उस पर हम बहस करेंगे, 10 घंटे बहस करेंगे, 12 घंटे बहस करेंगे, और वंस एंड फॉर ऑल नेहरू जी के जितने गलती है उस पर हम लोग एक फुल स्टॉप लगा देते. गलतियां बता दो, हम सॉल्यूशन निकालेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसको खत्म कर दो आगे. तो हम लोग सब देखा कि जबरदस्त स्टेट्समैन है. ब्यूटीफुल. एक स्टेट्समैन पैदा हुआ है कांग्रेस के अंदर, जो इतने जबरदस्त तरीके से राष्ट्रहित में बात करते हैं. बट देन जो हुआ उसके बाद थोड़ा निराशाजनक था. निजामुद्दीन जी, जब हम देखे प्रियंका जी वहां पर डेलीगेशन में गई, स्पीकर साहब के पास निराशा हुई. स्पीकर साहब के पास प्रियंका गई ना. गांधी ने भारत की पार्लियामेंट को संबोधित किया प्रधानमंत्री की मौजूदगी में.
भारत के प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था, उनके हाउस लीडर के पास कोई जवाब नहीं था। जिस तरह से प्रधानमंत्री सहित पूरी कैबिनेट उनकी बेइज्जत हुई वहां, जिस तरह से ओम बिरला का चेहरा आप देखते, जिस तरह से वो बदमाशी कर रहे थे ओम बिरला जी, तो वो सारा कुछ हुआ। और एक लास्ट का क्वेश्चन जो था बजाज सर, अगर आपने याद किया हो, जिस वंदे मातरम को लेकर 10 घंटे डिबेट चली, प्रियंका गांधी से पहले जब माननीय प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, उन्होंने ये कहा गुरु जी ने एक अधिवेशन में इसको पढ़ा था जी, प्रियंका जी ने 1896 एक लाइन पूरा में उन्होंने उनकी पूरी मिट्टी पलीत कर दी कि वो ये भी बता देते कि वो अधिवेशन किसका था। करेक्ट। तो आप इससे समझ जाइए कि देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, देश के प्रधानमंत्री कितना इतिहास पर बात करेंगे। नहीं सर, वो जानते देश थे। के प्रधानमंत्री जब इस उनको ये ज्ञान नहीं That is है कि bad. वंदे मातरम जो है वो कांग्रेस का लाया हुआ है और कांग्रेस के अधिवेशन में ही पढ़ा गया, अगर उनको इसका ज्ञान नहीं है तो वो नेहरू पर क्या बहस करेंगे। नेहरू पर बहस करने के लिए दुनिया के उन टॉपर्स की जरूरत है जिन्होंने नेहरू को देखा है, नेहरू पे काम किया है। नेहरू विषय है, सब्जेक्ट है, थीसिस है, और नेहरू को छोटा बड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला। बजाज साहब, नेहरू बनने के लिए 1 सदी पहले फिर से पैदा होना पड़ेगा और फिर नेहरू के कैरेक्टर्स को देखकर उस पर काम करना होगा। किसी लकीर को छोटा करने से दूसरे की लकीर बड़ी नहीं होती। माननीय प्रधानमंत्री जी लोकतांत्रिक देश में चुनकर आए हैं, लेकिन झूठ बोल के कोई चीज चलता नहीं। आप जिस वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं, मैंने संजय सिंह की बात करता हूं, हालांकि वो मेरी पार्टी के विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से और हाउस में चेयर से एक बात ये कही कि आप जिस वंदे मातरम की बहस के लिए आ रहे हैं, आप मुझे एक ही खाली बता दीजिए कि क्या जब ये स्टार्ट हुआ था कोई 4 नाम दे दीजिए जो आपके टॉपर्स रहे हो, जिन्होंने इसको गाते हुए जेल गए हो या उनकी शहादत हुई हो। ना तो कोई उनका जेल गया, ना उनकी कोई शहादत हुई, बल्कि जो लोग ये गा रहे थे उनके खिलाफ जो है आरएसएस के लोगों ने जाकर एफआईआर लॉन्च किया और एफआईआर की कॉपी वहां दिखाया। उन्होंने एफआईआर की कॉपी बाकायदे उन्होंने हाउस को दिखाया। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह की जो घटना है सर, ये जी शोभा नहीं देता। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कि पहले वो स्वयं इतिहास पढ़ें, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया इतिहास भारत के लिए ठीक नहीं है। अमित शाह जी ने जब कहा कि वंदे मातरम का जब टुकड़े टुकड़े कर दिए, तब पार्टीशन के नींव वहां पर एनफोर्स कर दिया गया। पार्टीशन के नींव जब वंदे मातरम का टुकड़ा कर दिया था, तो पार्टीशन के नींव भी वहां पर रचा गया। पार्टीशन होने पर मजबूर हो गए, तो नेहरू जी पार्टीशन। हाँ बोलिए। सुनिए ना सर, आप बीएन सरकार की या विशंबर नाथ पांडे की या पीसी सरकार की, इनके इतिहास को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये कितना सच बोल रहे हैं और कितना सच है। कल के पार्लियामेंट डिबेट में जो चीजें हमने सुनी, जो हमने देखा, आपने तरुण गोगोई को सुना? जी सुना। आपने कल जब वो राहुल गांधी जब बात कर रहे थे तो आपने देखा कि अमित शाह जी अपना आपा खो गए। उन्होंने कहा मैं डायरेक्शन करूंगा। आप कौन है डायरेक्शन करने वाले पार्लियामेंट को? पार्लियामेंट का डायरेक्शन पार्लियामेंट का अध्यक्ष करेगा, ओम बिरला जी करेंगे। लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि ये चाहते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर निजाम साहब, जो अभी आपने रेज किया है ना, जो सब्जेक्ट आपने रेज किया है, मैं चाहूंगा उसके बाद बीएन कुमार साहब भी इस पे बोले। राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया, जो बात रह गई, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, उस पे अमित शाह जी ने कुछ बोला नहीं। क्या है कि राहुल गांधी जी ने यह पूछा था, व्हाई हैव यू गिवन इम्यूनिटी टू द इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा, उनके लोगों को आपने सुरक्षा कवच कैसे दे दिया है? उसके ऊपर अमित शाह जी भड़क गए। उन्होंने कहा कि मेरा भाषण कैसे चलेगा वो मैं तय करूंगा, आप तय नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले आज तक कभी इलेक्शन कमीशन को इम्यूनिटी नहीं थी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिस्कशन होता था पार्लियामेंट में, इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे जाते थे, यह कहा जाता था कि आपके फला स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने गलती करी है। आज आप वो नहीं कह सकते निजाम साहब। आज का जो नया कानून है,
इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिस्कशन ही अलाउड नहीं है। नहीं आप सर, बताएं सर। अलाउड नहीं है, लेकिन जब वो किया गया, आपको पता है कि जी। पहले से तय था कि जब इलेक्शन कमीशन की बॉडी बनती थी तो उसमें उस टाइम ये तय हुआ था कि उसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस कमेटी में होगा, लीडर अपोजिशन भी होगा। उसके बाद जिस तरह से बदलाव करके जिस तरह की काम किए गए, तो इलेक्शन कमीशन को इतनी आपने आजादी दी ना। अगर इलेक्शन कमीशन ही सर्वे सर्वा सारा मालिक है तो फिर संसद में बहस किस बात की? Correct. देश की सरकारों की महत्ता फिर किस बात की? आप जिस चीज के लिए रखे गए हैं, अगर आप उसका आपके ऊपर कानून नहीं है, ठीक है, मैं मान सकता हूं, ठीक है, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, लेकिन देश के नागरिक को बताना तो पड़ेगा ना सर। सर क्यों सवाल जवाब नहीं करेगा? मेरा तो ये है कि हर एक, मैं आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, लुक एट द अमेरिकन सिस्टम, बीएनके, लेट मी कम टू यू। अमेरिकन सिस्टम में जब भी कोई जज अपॉइंट होता है, भले यूएस सुप्रीम कोर्ट का जज भी अपॉइंट हो रहा है, दैट पर्सन हैज टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ ए कांग्रेशनल कमिटी, और कांग्रेशनल कमिटी उसके एक एक व्यक्तिगत घटना के बारे में पूछती है, इंक्लूडिंग आपकी गर्लफ्रेंड्स कौन रही हैं, आपने कितनी शादियां करी हैं, कहां से आपको पैसे मिल रहे हैं, एक एक चीज बाहर आती है। वैसा सिस्टम भारत में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सर। बीएनके साहब, व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन? व्हाई शुड दे गेट इम्यूनिटी? Why should the election commission be immune from any legal challenge? I'd like to know from you, sir. आप बताइए, बीएन कुमार साहब। नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो अभी तक जो प्रथा चलती आ रही थी, इसको ये एनडीए सरकार ने तोड़ा है। जी। और एक्चुअली इवन द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दे हैव गॉन बैक ऑन दैट। एक्चुअली सीजीआई शुड बी द पार्ट ऑफ इट, बिकॉज Yes. दो इट इज आल्सो a constitutional body, but election commission has a different role to play. Ultimately, even the election commission of India is answerable to Supreme Court by the constitution. Yes. So the constitution is supreme, they are under the constitution. Yes. So the process of appointing the chief election commission of India, that should be absolutely transparent, and also the total functioning. आप वो सवाल करते हैं कि वो आप वीडियो टेप दीजिए, उसमें आप सीईसी कहते हैं कि हमारे माँ बहनों का वीडियो हम आपको दे सकते हैं क्या? और ये सब चीजें Nonsense. I mean, it's very totally wrong kind of a comparison, wrong analogy. They should have given the tapes. They should have, and You are being whatever very record polite. that they have been maintaining, आप बहुत that तमीज should से be बात कर रहे हो much यार। readable. They are Yeah. not transparent there. जी, बट आगे जाके एक मिनट, अरे बीएनके, आरबी पाकिस्तान, हमारी हमारी Yeah. माताएं बहनें जितनी हैं, क्या पर्दे में हैं? क्या है ये? What kind of an argument is अरे this? खुल के तो आते हैं ना। जी नहीं, that's what I want to know. If somebody can go to the electoral booth, किसी बूथ में जाकर के कोई महिला वोट कर सकती है, तो उसकी सीसीटीवी फुटेज आप रिलीज क्यों नहीं कर सकते? That is a very legitimate demand. Legitimate demand है भाई। 5 बजे के बाद इकट्ठे किसी भी बूथ के ऊपर अगर 25 के 50,000 वोट पड़ गए 5 बजे के बाद, तो we would like to know क्यूज कहां थी, कितनी लंबी कतारें थी, क्या थी? अरे हर एक को जानना है भाई, हम देश के नागरिक हैं यार। What is this? बीएनके साहब, ये क्या है? नहीं, इस बात को लेकर जब राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाया था, एकदम वाजिब था। He was very much right. He said that जब मैं सवाल उठा रहा हूं, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देता है, अगर जी। अभी हाँ नहीं दे सकते हो, join me at the press conference outside 1-to-1. I'm ready for the debate. Why didn't you do that? मेरे ख्याल से उस पर थोड़ा सा वो निर्वस हो गए, उस पर थोड़ा सा वो प्रदीप जी। हिल गए और भड़क गए। बीएन कुमार जी। अमित शाह को भी इतना भड़कने की जरूरत नहीं थी। बीएन मैं जाहिर करूंगा, एकदम गुस्से से बात कर रहे थे भाई। And then he says, I will decide I will discuss how the process will go on. That reminded me of BJP president talking in Rajya Sabha just before our friend Dhankar left. Yes. यस बीएन कुमार जी, ना आप बिजनेस से बहुत संबंध भी रखते हो कि यू हैव बीन कवर्ड बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंडिगो फियास्को राहुल गांधी जी ने कहा कि दिस इज द आइडियल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट मोनोपोली मॉडल। गवर्नमेंट सरकार का मोनोपोली मॉडल है। मोनोपोली बिजनेस पूरे देश में क्रिएट करना, अडानी और वाला वगैरह वगैरह, और फिर यही मोनोपोली बिजनेस जायंट्स मैच फिक्सिंग करते, ये प्रोजेक्ट हमारा, वो प्रोजेक्ट हमारा, वो प्रोजेक्ट। बोले इंडिगो पर कानून, I mean, how do you see the Indigo fiasco? Has the government failed the people? बीएन कुमार जी। Absolutely, because it's a total, I will not say government directly, but even also the DGCA failure. Yes. Because the DGCA
ought to be keeping an eye on the functioning of the aircraft. They did. They did. Please remember Pradeep and RKB, this is a highly regulated sector. Yes. It is not like कि एक गली में 4 किराना दुकान खुल गए, 4 दूसरे शॉप खुल गए, ऐसे ऐसा नहीं होता. इट इज हाईली रेगुलेटेड सेक्टर. हर पहलू के ऊपर डीजीसीए की नजर रखना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट इसी चीज को लेकर हम भी नई मुंबई एयरपोर्ट के बारे में बातें कर रहे थे. आई विल कम टू द सब्जेक्ट लेटर. बट टोटल ट्रांसपेरेंसी, टोटल कंट्रोल ऑन द सिस्टम, रेगुलेशन, और ये जिस तरह से आप 10-15 साल पहले 4-5 एयरक्राफ्ट एयरलाइन कंपनी हुआ करती थी, एंड इट वाज अ गुड चॉइस फॉर द पीपल. Yes. और धीरे धीरे वो डिसअपियर हो गए और इंडिगो को मदद मिली, इंडिगो आगे गया. Please remember, Indigo also contributed to this electoral bonds. Yes, so they did. I don't see, I don't say 1 + 1 is 2 here, but then there is definitely a suspicious. So that is how probably they have been. अरे भाई, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, February last year में जो Yes. कानून लाया गया था, लाए गए थे, that was not implemented. After full 1 year, those rules were not implemented. What were DGCA doing? Correct. They So ought to let have me opened their eyes let me and go put across up to Indigo. let me go across to उसके निजाम साहब. उसके निजाम वो साहब, करने से जगह ये, I mean, they allowed, and then now it is bit DGCA government fighting for firefighting. Look at the way control room was created, RKB. Yes. You saw the control room? Yes, I did. Mr. Naidu, who was sitting across a table with somebody, and media calls it the control room. That's not the way. No, सबसे बड़ा चीज बीएन कुमार जी, It's a joke. बीएन कुमार जी, फेयर हाइक जिस प्रकार से हुआ, जो रॉकेट हो गया फेयर हाइक, ये सरकार का काम था तुरंत रोकना. सरकार का काम था तुरंत रोकना. क्या सरकार फेल नहीं हुआ? आपने बढ़ने कैसे दिया? आपने इस चीज को ऐसे phenomenal heights जो बोलते हैं, phenomenal heights, impossible, unbelievable heights. The fare was rocketing to. It is a government job. Immediately, ऑनलाइन सिस्टम है आजकल. आप 3 दिन क्यों रुके, 4 दिन क्यों रुके, बीएन कुमार जी? ये आज की बात नहीं है. ये सर्जिंग प्राइसेस वाला सिस्टम जो है, सर्जिंग फेयर्स, it has been there for the past quite a few years, and it is criminal, totally criminal, because अरे दिल्ली बीएन अमृतसर कुमार का साहब, फेयर जो है is more than Delhi लंदन. बीएन कुमार साहब, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा, ज्यादातर वो एक और लाइन ऐड कर देते हैं. आज उन्होंने नहीं करी, शायद भूल गए होंगे, कि स्टॉक मार्केट में कोई किसी शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है तो सर्किट ब्रेकर लग जाता है. सर बिल्कुल ये क्या हो रहा है? मुंबई पुणे 61,000, 61,000 रुपए. दिल्ली हाईकोर्ट has asked. दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा ये क्या हो क्या रहा है? ये इंडिगो में क्राइसिस चल रहा है और आकाशा और एयर इंडिया अपनी टिकट बढ़ा रही हैं. अरे भैया, ये आप कैसे अलाउ कर रहे हैं? निजाम साहब, अब आप ये बताइए, जो राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा है इंडिगो एयरलाइन पे, बहुत वाजिब सवाल पूछा है. ये क्या है भाई? ये फरवरी का सर्कुलर है, अभी तक आपने इंप्लीमेंट नहीं किया. मेरा ये कहना है निजाम साहब, एयर इंडिया ने, आकाशा ने, अलायंस एयर ने, स्पाइस जेट ने, सब लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया, अकेले इंडिगो ने नहीं किया. और जान करके, और आज की तारीख में डीजीसीए को, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, इंडिगो को और वक्त देना पड़ रहा है. मतलब ब्लैकमेल होगा ही ना. डीजीसीए वो रिट्रीट कर दिया उन्होंने. इसका मतलब मैं तो सिर्फ एक ही चीज मानता हूं, इसमें सरकार का मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट तो है इंडिगो को. आप बताइए सर. सिर्फ सरकार का सपोर्ट नहीं, अगले 15 दिनों में आप देखेंगे एयरलाइंस बिक के अडानी के पास आ जाएगी. ये अडानी को एयरलाइंस देने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है. जब एक संस्था ढंग से काम कर रही है, आपने देखा होगा कि मुंबई का एयरपोर्ट जब ऑलरेडी JBU के जिस पहली संस्था को दिया था, जीवीके को, उसके बाद जब अडानी ने कहा कि मुझे एयरपोर्ट चाहिए, तो उसके यहाँ ईडी की रेड डाला, उसके कई प्रोजेक्ट पर जो है बैन लगाए गए, उसके ऊपर FIR लॉन्च किया गया. जब तक वो विड्रा नहीं हुआ और ये अडानी को मिल नहीं गया, तब तक उसको हैरान किया गया. वो एयरपोर्ट ऑटोमेटिक चला गया, जबकि बनाया उसने था. तो ये खेल है बहुत बड़ा. बजाज साहब, अगले 15 दिनों में आप देखेंगे कि जैसे 21 तारीख को संसद खत्म होगी, संसद खत्म होने के तुरंत बाद, क्योंकि फिर उसके बाद 4 महीने तक कोई पार्लियामेंट नहीं बैठने वाली है, वो तुरंत जो है ये एयरलाइंस बेचकर उसको दे देंगे. और उस वक्त तक हजारों करोड़ रुपया बर्बाद हो चुका होगा, और जो जनता का नुकसान हुआ उसका कोई उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं है. जबकि सिस्टम ये था कि केंद्र की सरकार, उनका मंत्री इन्वॉल्व है, वहां जा रहा है, उन्होंने अपने ऑब्जर्वर्स इसी काम के लिए बिठाए हैं. अच्छा, जब वो रिस्टोर करना चाह रहे हैं फ्लाइट है,
तो उसके बाद भी आप उनको दबाव डाल रहे हैं 15% आप नहीं करेंगे, 10% नहीं करेंगे, 20% नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा खेल केंद्र सरकार के नेतृत्व में खेला जा रहा है और जनता की जवाबदारी नहीं ले रहे हैं। अगर किसी के घर कोई शादी ब्याह है, मैंने एक टेलीविजन पर देखा कि एक किसी के ऑनलाइन शादी दिखा रहे हैं कि वो नहीं पहुंच पाया जोड़ा कपल, तो वहां जो है विधि हो रही है एयरलाइंस। ये बदकिस्मती है इस देश की कि ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार इस देश में बैठी है जो जनता की हितों लेकिन की एक चीज बात तो ही नहीं कर है, रही है। लेकिन निजाम साहब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं, इसके ऊपर जरा बात करेंगे। मतलब क्योंकि इंडिगो का जो क्राइसिस है उसकी वजह से मालूम है क्या हुआ भाई, बीएनके यू मस्ट बी नोइंग, उसकी वजह से क्या हुआ है, ट्रेन सारी फुल जा रही है, मालूम है ना आपको, सब लोग भाग रहे हैं ट्रेन की तरफ, सब लोग भाग रहे हैं बसेस की तरफ, बाकी सारी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो फुल हो गई है इस वक्त। नंबर 2, इंडिगो 60 से 70% फ्लाइट्स इंडिगो की हुआ करती थी, वो एयरलाइन जो है अभी क्राइसिस से गुजर रही है, हालत खराब है। मेरा यह कहना है कि भाई डीजीसीए ने सर्कुलर इशू किया फरवरी में, फरवरी से लेकर के आज तक आप क्या कर रहे थे? आपने फॉलो अप नहीं किया, आपने इंडिगो को बोला नहीं कि भैया इसको इंप्लीमेंट करो, इसको इंप्लीमेंट करो, इसको इंप्लीमेंट करो। देखिए जो सर्कुलर बहुत अच्छा है वो ये है कि पायलट जो हैं उनको इतना रेस्ट मिलना चाहिए, 8 घंटे से ज्यादा वो ड्यूटी नहीं करेंगे, जो कैबिन क्रू है उसको भी रेस्ट मिलना चाहिए, ये पैसेंजर सेफ्टी के लिए है, बिल्कुल है। तो आप क्या कर रहे थे निजाम साहब? मैं ये जानना चाहता हूं कि जितने अफसरशाही क्या कर रहे थे लोग। मैं आपको बता रहा हूं सरकार क्या चाह रही है वो उसकी मंशा है, लेकिन एक पायलट की एक एकेडमी बनाई इन्होंने, अडानी ने। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि जो खेल के पीछे की कहानियां है ना, उसमें इन्होंने एक एकेडमी बनाई है जो पायलट ट्रेनिंग के लिए बड़े पैसे लेकर उनको ट्रेन कराए जाएंगे। तो उतनी फ्लाइटें ही नहीं रहेंगी तो बैठाएंगे कहां, लाएंगे कहां आपको उन पायलटों को? ये सारे ड्रामे के पीछे बहुत सारी साजिशें हैं। सरकार को चाहिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाए और इसकी जांच करे, फिर देखिए क्या क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं। खाली वो जीआर इशू कर देने से नहीं होने वाला, जांच करनी चाहिए कि अडानी ने जिस पायलट एकेडमी को बनाया, जहां नए पायलट भर्ती किए जाएंगे और ट्रेनिंग करके उन्हें भेजे जाएंगे, उनका क्या खेल है, वो किस लेवल पर चलाए जा रहे हैं। चलिए एक और अच्छी खबर आई है सर, बहुत बढ़िया खबर आई है निजाम साहब। यस, एक बहुत अच्छी खबर आई है अभी बीएनके साहब और निजाम साहब और हमारे दर्शकों के लिए भी। आज डॉलर जो है वो वापस 90 रुपए 25 पैसे का हो गया है सर, मुबारक हो, 90 रुपए 25 पैसे का हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक महीने के अंदर अंदर सेंचुरी मार देगा सर, 100 रुपए पे जाएगा, जबरदस्त। निजाम साहब आपको सरकार को कांग्रेचुलेट करना चाहिए, बहुत बढ़िया काम किया है, वेरी वेरी फ्रैंकली। बोलिए निजामुद्दीन जी, आप कह रहे थे कि मोनोपोली, मगर राहुल गांधी जी ने वही हाईलाइट कर दिया, पूरे देश के बिजनेस मोनोपोलाइज हो गया है। तो अडानी जी, पूरा दुनिया देख रही है, अडानी जी एक ही प्लेयर है, ऐसे अडानी, अंबानी और राहुल गांधी जी आगे जाके कह रहे हैं कि आप लोग ये जो मोनोपोलीज है वो मैच फिक्सिंग करते हैं, मैच फिक्सिंग, ये सेक्टर आपका, ये सेक्टर हमारा, ये सेक्टर तीसरे का। नामबिहार सर, अभी तो उन्होंने नेशनल मीडिया को ही पोलराइज कर लिया, नेशनल मीडिया के सारे चैनल 2 घरानों ने खरीद लिया। आज 90% चैनल जो है इस देश के उन्होंने परचेस किए हैं आप बताने के लिए जी। उसके बाद ये छोटे छोटे यूट्यूबर और छोटे चैनल जो बेचारे इज्जत रख रहे हैं भारत की, जो लोगों तक सच पहुंचा रहे हैं, इन पे भी कब्जा कर लेंगे, नहीं मानेंगे पुलिस के ऊपर केस डाल के जेल भेज देंगे। जो मुंबई में शुरू हो चुका है खेल, हो चुका है शुरू, अभी मुंबई में खेल शुरू हो गया। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, अभी तो ये सारी की सारी खेल इसीलिए हो रहे हैं कि पूरे भारत की इकोनॉमी 5, 7, 8 घरानों को दे दी जाएगी, बाकी के लोग जो है कटोरा लेके उनके पीछे चलेंगे। मैं व्यापारियों से पूछा, जो छोटे व्यापारी हैं, कि भाई आपको क्या तकलीफ है, सब तो आपके जैन मारवाड़ी को पास आ रहा है। बोले सर वो खाली 10-5 घरानों को ही सारा पैसा आएगा, हम तो तब भी गरीबी की रेखा के नीचे चले गए थे, अब भी गरीबी की रेखा के नीचे रहेंगे। मोदी जी चाहते हैं कि 10-20 घरानों में भारत की सारी इकोनॉमी, भारत की सारी चीजें, वो चाहे देश में हम बना रहे हो या हम उसे जमीन से निकाल रहे हो, वो सारा इन घरानों को दे देंगे। उसके बाद किसी के पास कुछ नहीं बचेगा, सब कटोरा लेके लाइन में खड़े होंगे। BNK, you wanted to say something? लूट का एक रास्ता उन्होंने तय कर दिया है। जी, BNK, you wanted to say something? BNK साहब। Yeah. Actually, as we started this debate, आपने कहा था कि एक Congress has fallen into the BJP trap. Actually, this kind of very key issues are happening in the country. Indigo crisis हो गया, बाकी सारे और problems हैं। ये सारी चीजें they will get sidetracked. That's what BJP actually wants. Absolutely. अभी इंडिगो क्राइसिस को दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया पिछले 6 दिनों में,
Vande Mataram debate is one example. I mean, of course, it is Sir, very the important, Babri but Masjid- There's no discussion on Indigo. Babri There's no Masjid discussion on foundation Election stone. Commission. You have discussion on Vande Mataram. So this अरे basically बाबरी मस्जिद sidetrack फाउंडेशन entire स्टोन, important सर। issues. Yes, So बात this उस is- पर भी हम बात करेंगे सर। अरे सर मेरी बात सुनिए बीएनके मुद्रा- साहब, बीएनके साहब, दैट जेंटलमैन हुमायूं कबीर 100% उसको इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसको प्रेरणा कहां से आई है। प्रेरणा नहीं सर, उनका आदमी है वो, पहले उनका सदस्य रहा है। उनमें आदमी क्या, हिंदुस्तान का मुसलमान ये इस तरह की चीजें नहीं चाहता। जी जब वो अपनी बाबरी मस्जिद, असल बाबरी मस्जिद को कोर्ट के जजमेंट पर छोड़ सकता है, तो ये बेहुदा हरकत करने के लिए किसको टाइम था? जी। ये तो बीजेपी खुद करा रही है उसको पैसा देकर। Right, बीजेपी so- साधन नहीं, मुहैया करा रही आता हूं आपके है पास। पहुंचने का। निजाम साहब एक सेकंड, क्योंकि उनको बंगाल बीएनके में साहब कुछ बोल रहे थे, स्ट्राइक एक सेकंड करना है। सर एक सेकंड, बीएनके साहब कुछ बोल रहे थे। बीएनके साहब यही बात निजाम साहब और मेरे बीच में और अन्य कांग्रेस के लोगों की बात बहुत हो चुकी है कि आप कृपा करके डॉलर की बढ़ती कीमत यानी रुपये, गिरता हुआ रुपया, उस पर बात करें, कीमतों पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, इन सब चीजों में बात करें ना, पानी पे बात करें। जैसे महुआ मोइत्रा केम आउट विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, वो स्पीच रह गई कि व्हाट डज इट मीन, वंदे मातरम का मतलब क्या है? सफलाम शुफलाम मलयच शस्य श्यामलाम, मतलब क्लीन वाटर, गुड फूड एंड क्लीन एयर, हवा, पानी, ये सब चीजों का जिक्र है वंदे मातरम में। अब कहां से आपको सर AQI 800 और 1000 के बीच में है दिल्ली में, और ऑल वाटर इज कंटेमिनेटेड, एयर इज कंटेमिनेटेड, तो क्या वंदे मातरम सर? अब आप बताइए बीएनके साहब। हमने इसी चीज को लेकर अभी एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को जी। कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना, खाली सिर्फ अधिकारियों तक वो अकाउंटेबिलिटी को सीमित ना रखें। अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो कम्स फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। आपके एरिया में, आपके वार्ड में, आपके कॉन्स्टिट्यूंसीज में पानी स्वच्छ नहीं है, एयर स्वच्छ नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी। जी जी निजाम साहब आप बोले। निजाम जी आपसे मैं पूछता हूं, मोदी जी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो फ्लैश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आवास योजना में करीबन 7 करोड़ घर में दे रहा हूं, उज्ज्वला हर रसोई में मैं पहुंच गया हूं, किट दे रहा हूं, आयुष्मान के माध्यम से 70+ को 5 लाख का कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट दे रहा हूं मुफ्त में, 50 करोड़ लोग इसका ये ले रहे, बेनिफिट ले रहे हैं। जल जीवन मिशन के तरफ से हर घर हमने नल से जल, ये अपना सपना है वो पूरा कर रहा है। तो एक स्वच्छ भारत के सपने, हर गांव बिजली, 25 करोड़, तो किस प्रकार तो क्या ये रिपोर्ट कार्ड आपको आप नहीं मानेंगे? रिपोर्ट कार्ड पूरे रिपोर्ट देश और कार्ड दुनिया मानने मान के रहे। आप एक एक चीज सुन लें। अभी आपने कहा कि 5 लाख रुपया वो दे रहे हैं। हाँ, आपको याद होगा कि राजस्थान में गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत की, वहां 25 लाख दे रहे थे, 5 लाख नहीं, कितना दे रहे थे? 25 लाख। तो आप इस तरह की चीजें दिग्भ्रमित करने वाली हैं, निहायत ही बकवास हैं। प्रधानमंत्री जो बातें करते हैं कि हमने 60+ वालों को सारी सुविधाएं दे दी हैं, मैं स्वयं गया था रेलवे में टिकट बुक करने, उन्होंने कहा ऐसा कोई GR नहीं निकला है, ये सिर्फ बातें हो रही हैं। जी। अगर किसी ने उसका बेनिफिट लिया हो तो सामने आना चाहिए ना सर। इस तरह की योजनाएं रोज इंटरनेट पे दिखाई जा रही हैं, रोज जो है इस तरह की बातें हो रही हैं सर, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन ये सब होने के बावजूद जो है, जब तक यहाँ कोई चीज दिखे नहीं हम कैसे मान लें? और मानना ना मानना विषय नहीं है सर, विषय अलग है। विषय ये है कि ये सब एक छलावा है सर, जी। और छलावा में कब तक आप जिएंगे? दुरुस्त बात। By the way, the gentleman speaking to us is Mr. Nizamuddin Rain. I think he's getting a call, अरे, which is why I can't see him. काल इतनी सर फोन आता है कि जी तकलीफ जी होती जी है। क्या करेंगे? जी बस दुरुस्त हो बात है। गया। let me go to BNK. BNK very clearly the attempt is to see to it that a discussion should not take place on price rise, on the price of petrol and diesel. It should not take place on actual jobs, real jobs, and so on and so forth. आप हिंदू मुस्लिम में मरे रहो, लड़े रहो, मतलब किसी को कोई चिंता नहीं है। और जो 5 लाख की बात अभी प्रदीप जी ने करी ना मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक्स सर्विसमैन दे हैव समथिंग कॉल्ड एन ECHS कार्ड। पहले क्या होता था, जितने भी एक्स सर्विसमैन थे दे कुड गेट ट्रीटमेंट एट ऑल द आर्मी हॉस्पिटल्स, ऑल द मिलिट्री हॉस्पिटल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी उनको किसी भी हॉस्पिटल में जो लिस्ट में है उसमें आप जाएं, अपने ECHS कार्ड दिखाएं और आपको ट्रीटमेंट मिल जाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट।
आज की तारीख में hospitals have stopped accepting the ECHS card because they say we get payment after 3 years if we get them at all. Sir, announcement बहुत बढ़िया हुई है, no problem at all. But where is the delivery? BNK, please. Some connection network issues. Yeah, but can you hear me or not? I can hear you. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Go ahead. What is going Yeah. on here? Even for insurance, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए हॉस्पिटल्स को अगर पेमेंट मिल रही है तो 3 के 4 साल बाद मिल रही है। आप मुझे बताइए कौन हॉस्पिटल जो है कैशलेस ट्रीटमेंट देगा? सर आप बताइए ना बीएनके साहब। बिल्कुल आयुष्मान का इसमें ये बात उठी थी, बल्कि स्टेट से हरियाणा दिस क्राइसिस हैपेंड, और जो आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो उनको एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से लिंक किए गए थे उनका रिटायरमेंट के बाद में। So whichever hospital they had ties with some hospitals, now the hospitals have stopped taking because of non-payment issues. It's very tragic situation. और इस तरह से आप क्या ट्रांसपेरेंसी, क्या हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? दिस इज एब्सोल्युटली टोटली रॉन्ग। जी दुरुस्त बात। I want to ask you बीएन कुमार जी, एक नया प्रथा चल रहा है स्पेशली बीएमसी में निजामुद्दीन राइन साहब यहाँ पर है। बीएमसी में जो फंड्स अलॉट अब तक हुआ है वो कोई भी ऑपोजिशन कैंडिडेट्स जो है कॉर्पोरेटर्स है उनके एरिया में बिल्कुल नहीं आए। निजामुद्दीन जी आपसे पूछ रहा हूं, हमने देखा कि मिलिंद देवरा को करीबन 17 करोड़ के आसपास वहां पर उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिए। तो जितने भी पैसे दिए, मिलिंद देवरा कौन सा एमपी है राज्यसभा का, वो कॉर्पोरेशन के फंड्स का क्या वो, और जहां जहां आपके कांग्रेस का हो या उद्धव बाला साहब ठाकरे का हो अलग अलग है, उनको फंड्स नहीं दिया जा रहा है, मगर उनके फंड्स में जो सत्ताधारी हारे हैं उनको फंड्स मिल रहा है। ये क्या चल रहा है? क्या आप इसके लिए क्या कर रहे हो? बिकॉज ये लोकतंत्र के खिलाफ है। सर ऐसा है कि वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि मिलिंद देवरा को बजाज साहब 17 करोड़ दिया है, 7 करोड़ नहीं, तो सही कह रहे हैं 17 करोड़। मुझे लगा आज ही मेरी बात मुझे लगा 7 करोड़। उसमें हुआ ऐसा हो रहा है कि खुद आशीष सेलार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, और आशीष सेलार को ये लोग बात करने जाते हैं वो किसी से बात नहीं करता। सरकार का खुला इंस्ट्रक्शंस है कि यहाँ कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है नहीं, आपको सरकार का पैसा आ रहा है, सरकार के लोगों को देना है, और वही वो काम कर रहे हैं। और ये अभी से नहीं, जब आपको याद होगा मंगल प्रभात लोढ़ा इंचार्ज थे तो वही टाइम जितना भी फंड आया था वो ये तय हुआ था कि जब कारपोरेशन नहीं है तो कारपोरेशन का फंड 1000 कुछ 60 करोड़ इतना कुछ पैसा है जो इन लोगों के अंदर डिवाइड करना है 36 एमएलए और 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन वो 36 एमएलए और 6 मेंबर पार्लियामेंट के अलावा राज्यसभा और एमएलसी को नहीं देना है। उसके बावजूद मिलिंद देवरा जी को फंड जा रहा है, उसके बावजूद जो है जो बीजेपी के लोग चाहते हैं या सिंधे के लोग चाह रहे हैं उतने लोगों को फंड जा रहा है। तो ये एक तरह से डकैती है सर, ये जो है संविधान के खिलाफ है, कारपोरेशन के लॉ के खिलाफ है। लेकिन बस वही है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं। मैं आपको बताऊं कि कल मोहसिन हैदर साहब हमारे साथ थे, हम मोहसिन हैदर जी के साथ गए उनके इलाके में गिलबर्ट हिल पे, तो वहां एक है जनता कॉलोनी है, अभी इस प्रोग्राम के बाद हम वो दिखाएंगे उनके साथ जो हम लोगों ने शो किया। वो गिलबर्ट हिल के ऊपर एक जनता कॉलोनी है, जनता कॉलोनी में सर पानी नहीं आता। आप मानेंगे 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पानी आता है। अगर धरती पे कोई नरक है तो वो है। अब वो मोहसिन हैदर साहब कह रहे हैं, हम चिल्ला के बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे फंड भेजो, इतना फंड पड़ा था, इतना डेवलपमेंट फंड था सड़क के लिए, पानी के लिए। कहता नहीं साहब, क्लियर कट है, आप बीजेपी को वोट दीजिए, आपके पास फंड आप लीजिए। यस, इस तरह बदलाव तो हो रही सर, लेकिन हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हर हफ्ते हम पीसी कर रहे हैं। हमने हाउस में इसके हमारे 3-4 आमदार मुंबई के, उन्होंने इसको उठाया है। केंद्र में हमारी सांसद जो हैं उन्होंने अभी उठाया है, अभी इसी हफ्ते रेलवे के विषय को लेकर, पानी के विषय को लेकर अभी इस बार उन्होंने क्वेश्चन किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना सर, सब कुछ सरकार और जनता का निजामुद्दीन जी वहां नहीं है। आपके साथ पूरे कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ा इतिहास है उनका, सबसे बड़ा वकील आपके कांग्रेस के, आप जाएंगे तो तुरंत ये स्टैंड हो जाएगा, बिकॉज ये नाइंसाफी है कि आप ऐसे एरिया को स्टार्व कर रहे हो। अभी सरकार देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में अदालतों के बारे भी मैं बहुत ज्यादा कुछ टिप्पणी आपके साथ नहीं कर सकता। अभी आज जो कुछ हो रहा है, राज्य सरकारें जो चाह रही हैं अपने मर्जी से कर रही हैं। अच्छा, उनको ये भी फिक्र नहीं है कि जो आदमी दूसरा एमएलए चुन कर आया है उस एमएलए के यहाँ भी तो 10-20 हजार लोग इनके फॉलोअर्स हैं, उनको भी नहीं दे रहेंगे।
मतलब ये नैतिकता के बिल्कुल विरुद्ध है। अभी मान लीजिए कि नागपाड़ा से जो हमारा एमएलए चुनकर आया है, अभी जरूरी तो नहीं को 100% सब उसके वोट हों। 100% वोट में से बहुत सारी वोटें जो हैं वो बीजेपी की हैं, दूसरे नेताओं की हैं, लेकिन वहां की जनता को आप सता रहे हैं। वही काम आप मलाड मालोनी में कर रहे हैं, वही काम आप धारावी में कर रहे हैं। आप इनको सिवाय अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट, जमीन दिलाने और लूट मार करने के अलावा कोई चीज नहीं दिख रहा है, जो मुंबई की जनता देख रही है। अभी जब कारपोरेशन का चुनाव आएगा तो उनको जरूर जनता सबक सिखाएगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। निजामुद्दीन जी, चिंता का विषय यह है कि जो टेंडरिंग प्रोसेस में इस कदर करप्शन है, टेंडरिंग प्रोसेस में इस कदर करप्शन है कि कोई पायवाटा लगाना हो कि पब्लिक सर, ये टेंडर उसी को दिया जा रहा है जो आपके यानी रूलिंग पार्टी के कॉर्पोरेटर या रूलिंग पार्टी के आदमी के सेटलमेंट होने के बाद टेंडर उसी को दिया जा रहा है जिससे उसका साधगार हुआ है। सर, ये खाली कहने की बात थी कि ऑनलाइन टेंडर करेंगे, बगैर उनकी जानकारी के कोई टेंडर नहीं होता। और टेंडर छोड़िए, आपको और आगे बता रहा हूं, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको पहले बता देते हैं ये काम तुम कर लो, वो काम कर लेता है। अभी टेंडर निकला भी नहीं है सर। नाम्बियार साहब, आपको 10 उदाहरण देता हूं। सड़क बनानी है, पहले तुम सड़क बना लो, टेंडर निकलेगा बाद में पैसा दे देंगे, वो काम कर रहा है। ऐसे इस पे जांच कराइए ना सर। ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट हैं बजाज साहब, जो रूलिंग पार्टी ने उनको बता दिया कि ये रोड बना लो, ये गटर, ये कारपोरेशन का गार्डन ये बना डालो, बना के उसके बाद टेंडर होगा, फिर बिल देंगे, क्योंकि उनको पता है। एक चीज है, चलिए वो तो प्रूव करना पड़ेगा ना। यस सर, देता हूं डिटेल के साथ। आप डिटेल दीजिए, वो तो लेकिन उसमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज सर मेरी बात सुन लीजिए, एक चीज जो है जो बिल्कुल सामने है, जैसा अभी आपने बताया, मोहसिन हैदर साहब ने कल बताया कि भाई देखिए, अच्छा बीएन कुमार साहब, थैंक यू वेरी मच, यू बैक, बट ये सुनने वाली बात है। क्या है कि बीएमसी के फंड की एलोकेशन जो है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बीएमसी एक्ट। उस एक्ट के तहत ही होती है। ये कहीं पर एक्ट में नहीं है कि जो गार्डियन मिनिस्टर हैं मुंबई के, 2 गार्डियन मिनिस्टर होते हैं, एक सबअब्स के लिए और एक टाउन के लिए, कि गार्डियन मिनिस्टर तय करेंगे कि बीएमसी के फंड की एलोकेशन कैसी होगी, जो कि अभी हो रही है जीआर के तहत सरकार के। सर उन्होंने तो सर वही इलीगल है, उस पे कोर्ट में क्यों नहीं जाते सर? नहीं, उसके अलावा आप देखिए ना कि इनका जो गार्जियन मिनिस्टर है वो बीएमसी के दफ्तर में ऑफिस बना के बैठ गया सर। जी मालूम है सर, मालूम है जी, हाँ देखा है। वहां बैठ के डकैती हो रही, इसको दो, इसको नहीं देना। तो ये तो राज्य सरकार के डिपार्टमेंट यूडी को चाहिए ना, क्योंकि अब जनता के चुना हुआ कोई प्रतिनिधि तो आई नहीं, या कोई हाउस चल रहा है या स्टैंडिंग कमेटी चल रही है कि वहां हम बहस करें। अब हमको तो जाने का एक ही रास्ता बचता है, माननीय मुख्यमंत्री, वो कहते हैं हमको सुनना ही नहीं है इस पर आपसे, तो जनता के बीच जा रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं आप। मोर्चे बीएन कुमार जी, जो निजामुद्दीन जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीएमसी में जो प्रथा चल रहा है टोटल करप्शन का, नंबर 2 की जो रूलिंग पार्टी कॉर्पोरेटर्स है उसी के एरिया में फंड दिया जा रहा है। अब कॉर्पोरेटर्स को भी नहीं, अब एमएलएस को दे रहे फंड और एमपीज को दे रहे फंड। मिलिंद देवरा इज द हाईएस्ट बिगेस्ट एग्जांपल, 17 करोड़ उनको मिला है। ही इज एन एमपी फ्रॉम द राज्यसभा, वो 17 करोड़ अपने एरिया में खर्चा करने के लिए मिलिंद। नाउ दिस इज, और जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर है, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना के कॉर्पोरेटर्स है, इनको नो फंड्स, कोई फंड नहीं, बीएमसी में सुनवाई नहीं है, वो अपने वार्ड में जाते। वो पैसा सर, ये वो पैसा है 1050 करोड़ जो एलोकेट करेंगे। मैं इनको बीएन सर को बोलना चाहता हूं कि 94,000 करोड़ बीएमसी के पास हमेशा रिजर्व फंड रहता था। रिजर्व फंड हमेशा, चाहे किसकी भी गवर्नमेंट रही हो, कांग्रेस की रही हो या सेना उद्धव की या सेना बीजेपी की रही हो तो भी, लेकिन जब नई सरकार आई तो उन्होंने वो डिपॉजिट फिक्स तोड़ के सारा पैसा लूट डाला। 94,000 करोड़ मुंबई कारपोरेशन में ये फिक्स डिपॉजिट था, जिसका तकरीबन महीने का 5,000 करोड़ से ज्यादा का इंटरेस्ट आता था। उसके बाद ये जो टोल टैक्स, ये वो दूसरे साधन से पैसे आते थे, उससे कारपोरेशन चलता था। इन्होंने पहली बार उसको, वो पैसे को भी तोड़कर मुंबई बीएमसी को कंगाल कर दिया, और 1060 करोड़ रुपए ये जो आया, वो 1060 करोड़ बांटने के लिए था। 36 एमएलए, 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की में
और बराबर का डिवाइड होना था, लेकिन उसको भी उन्होंने काम पर लगा दिया। हर आज उसको दे रहे हैं जो बीजेपी का है, बस। Now, this is something, and the ये corruption सवाल that आप is. प्रधानमंत्री से पूछिए, ये पूछते हैं। सवाल आप मुख्यमंत्री से पूछिए ना सर, निजामुद्दीन से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, हम लोग सर, आपसे सर, इंफॉर्मेशन, ये सवाल आप बीजेपी से पूछिए ना, भैया ये पैसा कहाँ जा रहा है, लोगों- क्यों आप प्राइवेट को नहीं दे रहे हैं? लोगों तक पहुंचा के फिर सीएम और सबको खड़गड़े में क्या करना है, आपका रिएक्शन हम लेके। आपको एविडेंस के देते हैं, सब बैठे हुए, जितना बस। आपको चाहिए प्रूफ सब आपके पास आज नेट पर मौजूद है। आपको चोरी छिपा चीज नहीं है सर, तो उसका आपको सारी चीजें मौजूद विरोध हैं। करना पड़ेगा। और टेंडरिंग प्रोसेस, बीएन कुमार जी, टेंडरिंग ऐसा हो रहा है कि एक लोकल कॉर्पोरेटर के वार्ड में अगर कांग्रेस के कॉर्पोरेटर है, उनका कोई फंड का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है, मगर अगर वो हारा हुआ रूलिंग पार्टी का है, उनके थ्रू टेंडर क्लियर किया जा रहा है ना। एमएलए के थ्रू कर रहे हैं, एमएलए के थ्रू कर रहे हैं, हारे हुए रूलिंग पार्टी के थ्रू कर रहे Yes. हैं। दिस इज नेवर हैपेंड बिफोर। मतलब इस पे देश की जागरूक नागरिक जो है उसको जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, बड़े एनजीओ को जाना चाहिए। जी। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। छोटा मैटर नहीं है सर, जी। ये एक राज्य सरकार के बजट के बराबर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है सर। लेट्स आस्क बीएनके, योर ओपिनियन। बीएन कुमार जी, किस प्रकार से देखते हो आप दिस काइंड ऑफ करप्शन एंड दिस काइंड ऑफ हाई हैंडेडनेस नेवर विटनेस बिफोर? बोलिए बीएन कुमार जी। कुटा हियर यू, क्या बोल रहे थे प्रदीप? टेंडरिंग प्रोसेस में गड़बड़ी, हाँ, यानी टोटली, हाँ, जो सेट है और उसके साथ वो कॉर्पोरेटर या एमएलए के साथ डील हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्टर का, वो भले हाई हो, 10 टाइम्स हाई हो देन द लोएस्ट टेंडर, उसको टेंडर दिया जा रहा है खुलेआम। बोले तुमको जो करना है करो, टेंडर उसी के थ्रू हो जाएगा, उससे जाके बात कर लो। नाउ दिस इज द वे द बीएमसी इज फंक्शनिंग नाउ, द फंड्स डिस्पोजल। या दिस इज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का अगर कोई रोल नहीं, वो वही रहेगा रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अभी तो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन जो भी वहां पर रिप्रेजेंटेटिव है, इट शुड बी द लोकल वॉइस, लोकल पीपल्स वॉइस हैज टू बी फेल्ट, एंड द एंटायर टेंडरिंग प्रोसेस हैज टू बी टोटली ट्रांसपेरेंट। एंड ई टेंडरिंग वगैरह जो भी होता है कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ करप्शन इन द टेंडरिंग सिस्टम, ई टेंडरिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, इवन दैट इज बीइंग सिंडिकेटेड, is absolutely wrong, and I think it is totally unconstitutional also. This is not the way the local self-government should function. BNK, I would like to ask you, Mr. Milind Deora, very dear friend of ours, he's a Rajya Sabha MP. Why should he Yes. get the development fund of the BMC? BMC उनको भी पैसे दे रही है, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ यार। And Milind Deora साहब, why is he accepting? मिलिंद देओरा साहब को तो ये बोलना चाहिए, ये मुझको भी दे रहे हैं आप यहाँ के जो पुराने कॉर्पोरेटर थे उनको दीजिए, वो काम करेंगे। मतलब राइटफुली स्पीकिंग मिस्टर मिलिंद देओरा शुड हैव सेड, हे लिसन, यू कांट डू दिस टू मी। अब उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब उसका क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ किसी को मालूम नहीं है। वो ऑफ कोर्स ही विल फाइल इट, ही विल डू व्हाटएवर। लूपहोल का फायदा उठाया जी, लूपहोल का फायदा उठाया। लूपहोल ये है, वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अब इलेक्टेड बॉडी है ही नहीं बीएमसी में, वो लूपहोल का फायदा उठा के। बट ही इज नॉट एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ही इज फ्रॉम द राज्य सभा, he is not from the Lok Sabha, he is from the Rajya Sabha. Why should they give it to him? Correct. That's what I would love to know. Just because he now happens to be in the Eknath Shinde सेना, भाई ये क्या है? और दूसरी चीज है, जो लीगल पॉइंट जो सबसे बड़ा बनता है बीएनके साहब, जो डिसबर्समेंट ऑफ बीएमसी फंड्स हैं, if suppose the elected body is not there, that is in the hands of the BMC commissioner. वहां से उठा करके आपने 2 गार्डियन मिनिस्टर्स को दे दिया कि भाई साहब मंगल प्रभात लोढ़ा जी आप देखिए, आशीष शेलार साहब आप देखिए, ये क्या है? अंडर विच लॉ? कौन सा कानून है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूं, ये हमारा पैसा है ना, टैक्स पेयर्स का पैसा है यार, तुम्हारे घर का पैसा तो नहीं है। मतलब आप इधर बांटो, चलो ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर बीएनके साहब, आप बताइए। नहीं गलत है, ये तो टोटल दादागिरी है। मतलब वहां बैठ के बांट रहे हैं, वो तो दैट इज वेरी टोटल रॉन्ग सिस्टम। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जैसे आपने कहा, इट इज द कमिश्नर्स रिस्पांसिबिलिटी। और जहाँ प्रोजेक्ट है वहां पर ऑलरेडी लिस्टेड है व्हाट ऑफिसर से आपको काम का सजेशन आता है, व्हाट ऑफिसर, लोकल ऑफिसर्स, दे आर ऑल रिस्पांसिबल पीपल, दे आर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। उनका रिकमेंडेशन लेके उनकी कंपनी कोई रिकमेंडेशन नहीं हो रहा बीएन कुमार जी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नो रिकमेंडेशन। वार्ड ऑफिसर भी हार गए, इंजीनियर्स भी हार गए, सब लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा कुछ चलता नहीं है,
आप जाके ये रूलिंग पार्टी के आदमी हैं, इससे पहले सेटलमेंट कर लो, फिर वो आके इधर दे देंगे, हम सैंक्शन कर देंगे। द एंटायर थिंग इज ओवर। वार्ड ऑफिसर करेगा, इंजीनियर प्रपोजल डालेगा, सब खत्म हो गया। आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात कह दूं मैं, प्रदीप एंड आरके भी, जी। बीएमसी हैज अ वेरी एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ एडवांस्ड मैनेजमेंट लेवल कमिटी मीटिंग, एएमएल कमिटी से हर वार्ड में। जैसे कि पवे में जहां मैं काम कर रहा हूं, वहां पर मिसेस पैमेला चीमा इज चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। सो व्हाट एवर लोकल इश्यूज शी ब्रिंग्स अप एट दे वर्क लाइक अ पैरेलल allocated body. They are also local people's representatives only. They propose यहाँ ये काम हो रहा है, यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा है, और जहाँ काम हो रहा है उसके ऊपर वो निगरानी रखते हैं। तो गिव अ सॉलिड एग्जांपल, पवई लेक के ऊपर जो प्रदूषण के ऊपर हमने जो मामला उठाया था, मुद्दा उठाया था, उसको द कमिश्नर भूसी अग्रनी हैज टेकन वेरी सीरियस नोट एंड आस्क्ड द एडिशनल कमिश्नर मिस्टर बांगर टू लुक इनटू दैट। इमीडिएटली दे स्टार्ट द टेंडरिंग प्रोसेस। वो टेंडरिंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ क्या प्रोग्रेस हो रहा है, उसके ऊपर कड़ी नजर रखी हुई है। और ये एएलएम काम करती है, हर वार्ड में एएलएम है। तो द कमिश्नर, माय अपील टू द कमिश्नर इज, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइक what you leaflets and station, you should take even ALMs into confidence, because they are living there. For instance, people like Chima, they live in Powai, they know what कौन से स्ट्रीट में, कौन से रोड में, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रदूषण है, कहाँ पर डस्ट पोल्यूशन हो रहा है, कहाँ पर गार्डन बराबर नहीं है। They have a very good committee. So every ward, I believe, has a committee. They should take them into confidence. They should activate them. If there's somebody inactive, you appoint a different committee. Commission has all the rights to do that. That should be the way the democracy should function. But I don't think they're doing it. They will never do it. Let's be very clear. As we'll show this program just after this show. Yesterday, as Mohsin Haider pointed out, कि भैया जितने भी आज की तारीख में आज की सरकार से रिलेटेड एमएलएज हों या एक्स कॉर्पोरेटर्स भी हों, उनके द्वारा फंड रिलीज किए जा रहे हैं और लोगों को यह कहा जा रहा है कि भैया तुम अगर कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे को या समाजवादी पार्टी को अगर आप वोट दोगे तो हम तो आपका काम करने वाले नहीं है। सीधी सादी बात है। एंड दे आर वेरी ब्लेटेंट अबाउट इट। सीधी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन अजीत पवार का स्टेटमेंट है ना। हाँ, वही मैं उसी पे आ रहा हूं। निजाम साहब, मालेगांव में अजीत दादा पवार बोलते हैं, अरे वोट तुम्हारे पास है, पैसा मेरे पास है, मुझे अगर वोट नहीं दोगे तो मैं पैसा रिलीज नहीं करूंगा। निजाम साहब, ये क्या है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। सर ये संवैधानिक सरकार ही नहीं है। गब्बर सिंह में आपने क्या फर्क है? गब्बर सिंह जैसी ये ट्रीटमेंट ही हो गया ना। दुरुस्त बात। और इतना ही नहीं, आप इससे आगे आपको बता रहा हूं, जिन लोगों को पार्टी से निकाल कर इन्होंने ज्वाइन कराया, उस वक्त उनको 10.5 करोड़ का टेंडरिंग काम, 2.5 करोड़ कैश उनको देकर पार्टी ज्वाइन कराया। जितने लोग आए उसमें ऐसे लोग भी थे जो 15 साल पहले कभी नगर सेवक थे, लेकिन भूतपूर्व नगर सेवक लिखने के नाते उनको 10 करोड़ का काम दिया गया। अब 10 करोड़ में से 40% उनका हो गया। तो ये जो चल रहा है, ये मुंबईकर को सोचने की आवश्यकता है कि मुंबई एक ऐसा शहर जहां टॉप के लोग रहते हैं, जो ब्रिलियंट स्कॉलर हैं, अलग अलग फील्डों के तमाम अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छे एडवोकेट्स हैं, अच्छे जजेस हैं। उनकी भी तो जवाबदारी है, क्योंकि बीएमसी कोई कानून नहीं बनाती। कानून तो बन के विधानसभा या लोकसभा से आएगा, उसका इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो सिविल सोसाइटी क्या कर रही है सर? सिर्फ कांग्रेस या एनसीपी या दूसरी पार्टियों से नहीं होने वाला ना। आप ही को उतरना पड़ेगा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को भी उतरना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा, आपको मार दिखाना पड़ेगा। अब आप अगर दूसरों को पूछेंगे तो लोग रोने लगेंगे, बोले क्या हो गया? हमारी नेता लगातार मोर्चा निकाल रही है, हम लगातार घेर रहे हैं मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोगों को लगातार। अंबादास दानवे, निजामुद्दीन जी, अंबादास दानवे ने आज ट्वीट के माध्यम से हाईलाइट कर दिया, सीएम फंड में अक्टूबर में 100 करोड़ आया था, 100 करोड़ से ऊपर, और खर्चा सिर्फ 75,000 हो गए। 75,000 तो स्लोगन दिया, दानशूर राज्य के कंजूस चीफ मिनिस्टर। तो ये क्या है? देखिए, ये सारे सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। अभी यहाँ सरकार का, पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं है। पांडे जी आपको देख के भाग गए। पांडे जी ने आपको देखा और नहीं आ रहे हो। ये बिल्कुल सच है कि बीजेपी के लोग आजकल बैठते नहीं है, सीधा भाग जाते हैं, क्योंकि वो पकड़ में आ जाते हैं। पकड़ में आ जाते हैं, इसलिए पकड़ में ना आया भाग जाते हैं। अभी उनको कहा गया है कि आप लोग बहस में ही मत जाओ,
क्योंकि अभी जो चुनाव होने जा रहा है सर, ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक इलेक्शन है। अगर ईमानदारी से हुआ तो सब कुछ होगा, और अगर बेईमानी हुई तो बीजेपी ने तो बोल ही दिया है कि हम तो ले लिए हैं। तो अगर इस तरह से देश का लोकतंत्र चलेगा और उसका मजाक उड़ाएंगे तो आज नहीं तो कल फिर तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। जी। तो क्योंकि आज जिस तरह का आज के कार्यक्रम में दो कांग्रेसी है, एक तो आप ऑफिशियल कांग्रेसी हो और बीएन कुमार जी अनऑफिशियल कांग्रेसी है। तो पांडे जी इसलिए भाग गए। नॉलेज है वो, उनको वो बहुत सारी चीजों के बारे में उनको अच्छी जानकारी है, वो रख रहे थे। मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, जो चीजें निकल कर आती हैं हम उस पर बात करते। एआईसीसी वाले भी कह रहे हैं बीएन कुमार जी हमारे आदमी हैं। चलो बीएन कुमार जी, मगर जिस सोनिया गांधी जी को जिस प्रकार से नोटिस किया, कोर्ट रोज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस भेजे सोनिया गांधी जी को कि आप सिटीजन बनने से पहले, सिटीजनशिप हासिल करने से पहले आपने मतदान किया, वोट किया ना। किस प्रकार से देखते हो? कितनी बड़ी फ्रॉड सर, ये एकदम फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। और इस पर कितने केसेस आए, सब उड़ गए, कोई केस टिका क्या आज तक? मेरा ये कहना है निजाम साहब, मेरा ये कहना है अगर सच भी हो तो क्या हो गया? कितने साल पुरानी बात है, 1980 की बात है। बीजेपी को सच से कोई लेने देना नहीं ना सर। अब जब भारत का डिफेंस मिनिस्टर ये कह सकता है कि नेहरू बाबरी मस्जिद बनवाने वाले थे जी, जब ये भारत का जो है डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहता है तो शर्म नहीं आती सर? जी। अभी क्या बोल सकते हैं आप? कहीं दुनिया के किसी कंट्री में होता है क्या? सर अगर अपोजिशन गलत कर रहा है या सरकार गलत करे उस पर बहस करिए। आप तो सीधा सीधा वो कि हमसे कोई कुछ ना पूछे, अब नेहरू जी से पूछो। अब भैया नेहरू जी का पता लगा के रखो। तो आप नेहरू जी से रिजाइन करवा दो ना सर, गलती आपकी है। हम तो कब से बोल रहे हैं पंडित जी, आप अब अपना इस्तीफा दे दो, बहुत साल हो गए, अब छोड़ो, अब आप मोदी जी को काम करने दो। हम तो यही बोल रहे हैं कि पंडित नेहरू जी से रिक्वेस्ट की जाए कि पंडित जी आप कृपा करके, मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि वो 2014 में इलेक्ट होके आए, ठीक है साहब, 2014 से आज तक मोदी जी यही बोल रहे हैं कि नेहरू जी को काम नहीं करने दे रहे। अब ये मैं बोल रहा हूं, बाय द वे दिस इज राजीव के बजाज स्पीकिंग। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट शोइंग मी, आई डोंट रियली नो व्हाई दे आर नॉट शोइंग मी, आई हैव नो आइडिया। यहां पर मुझे लगता है हमारे पीसीआर में सारे बीजेपी वाले हैं, वेरी फ्रैंकली। कोई बात नहीं, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, असल में है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं 11-12 साल हो गए मोदी जी को, तो प्रियंका गांधी जी ने ठीक ही बोला ना, एक डिस्कशन कर लो, सारी भड़ास निकाल लो एक बार नेहरू जी पे, फिर उसके बाद असली सब्जेक्ट पे आ जाओ। जितनी भड़ास निकालनी है आपको पंडित जी पे निकाल लो, क्या है उसमें? मतलब आई फाइंड दिस वेरी, आई फाइंड दिस, आई रियली फाइंड दिस। कोई जानकार कोई कुछ रहे तो करे ना सर। उनके यहाँ जो थोड़ा सा सच बोलता है उसका क्या हश्र होता है, आपने देख लिया। स्मृति ईरानी नया शिकार हो गई। अभी पिछले दिनों उनका, मैं एक रवीश कुमार की रिपोर्ट देख रहा था, वो घर में से निकली तो रोते हुए निकली, उनको आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। सुषमा स्वराज का हश्र आपने देखा, जैनियों का एक ही लीडर था, उसका अभी प्लेन क्रैश में मारा गया। तो मतलब ये सब चीजें हैं। मुंडे साहब के ऊपर भी सस्पेक्ट है, उनकी बेटी को पता है अच्छे से क्या हुआ था। तो अभी ये सब बोल के सर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार इन सब चीजों को सुनना नहीं चाहती और देश हित की कोई बात नहीं करती, हिंदुत्व की बात करती है। सही, आप हिंदुत्व की बात करो, ये भारत है, हिंदुत्व की बात करो ना। लेकिन बताओ, हिंदुओं का तो हित करो नहीं है। मेरा ये कहना है हिंदुओं का तो हित करो यार, हिंदुओं का हित होगा तो बाकी सबका भी हित हो जाएगा अपने आप में। क्या भारत का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है, गृह मंत्री हिंदू नहीं है? जी है ना। और कौन सा हिंदू आएगा सर? वो हिंदू कहां से आएगा? यही तो हिंदू है ना। But by the way, a little bit of breaking news, gentlemen, little bit of breaking news. Mr. Modi has just tweeted that he has just spoken to Mr. Trump, and they've had a wonderful conversation with regard to all the issues, including trade relations, including security, including everything. Let me read the tweet out. He says, this is Mr. Modi, and he says, had a very warm and engaging conversation with President Trump. We reviewed the progress in our bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the US will continue to work together for global peace, stability and prosperity. That's what Mr. Modi has said just now. This was tweeted just now. I want to ask you, बीएन कुमार जी, आज पहले महाराष्ट्र में आप पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत आपने कवर किए। Both the विधान भवन, विधानसभा and the विधान परिषद are not having any opposition leader. No opposition leader. It is convenient for BJP to say कि उनके पास नंबर्स नहीं है तो स्पीकर डिसाइड कर लेगा। बट हाउ डू यू सी फॉर अ हेल्दी लोकतंत्र, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए क्या देयर शुड बी सम फॉर्मूला
कि ऑपोजिशन लीडर्स भी होना चाहिए? हाउ डू यू सी दैट? एक्चुअली बीजेपी को अपनी महानता दिखानी चाहिए बिकॉज दे शुड शो लार्ज हार्टेडनेस, क्योंकि दो देर आर नो नंबर्स, you continue the democratic tradition of having a leader of the opposition in the house. आप उनको रखना जरूर, जो भी लार्जेस्ट ग्रुप का लीडर है उनको स्पीकर अपॉइंटमेंट करनी चाहिए. स्पीकर विल डिसाइड. गवर्नमेंट कहती है स्पीकर कोई बाहर का आदमी तो नहीं है ना, वो तो बीजेपी का ही आदमी है. Once the CM and the cabinet decides, it is for the speaker. I mean, speaker will never say no. Yeah, it is their speaker, so they have to do that. And it's in democratic tradition, they should have it. And उनको डर क्या है? अपोजिशन लीडर होगा, अपोजिशन लीडर की पोजीशन के हिसाब से बात करेगा, करने दो. नंबर आपके पास है ना. अभी कुछ रिजोल्यूशन लाएंगे, कुछ इम्पीचमेंट लाएंगे, मुझे नहीं नो लगता ये डर कॉन्फिडेंस की लाएंगे, बात है. आप तो जीत जाओगे. आपको तो कोई इसके ऊपर डरने की चीजें नहीं है. यू हैव द नंबर, लेट देम बी देयर. साहब आपको लगता है ये डर एंड के यू शो यू ये आपको लगता है कि ये डर की वजह से कर रहे हैं? ये जान के कर रहे हैं सर, उनको सताने के लिए कर रहे हैं. सीधी सादी यस बात. इसमें वही ना, ये तो की डर है. बात नहीं है. अभी देखिए ना, नहीं आरकेबी देखिए, इतने सालों के बाद में लोकसभा में एक यू हैव एलओपी, he has been talking a lot. Sometimes he talks quite a bit of a sense. आज जो काम कर रहा है वो, that makes quite a bit of a sense. लेकिन ये इसीलिए ना, because they get, the government gets cornered. वोटर तक ये बात पहुंचती है ना कि आरकेबी, if Rahul Gandhi goes to a public meeting or a media and talks as a Congress MP or vice president of Congress, it has a different weightage. It goes in a LOP, it gets a different I don't think so. I don't agree with so you. that carries, I don't really agree with you. that But, weightage. तो but ये the इनको fact डर है और is- कुछ नहीं. but the fact is, बीजेपी को डर है ये और कुछ नहीं. उद्धव जी सर मैं जाना चाह रहा हूँ. जी, मैं समझ गया सर. थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर टॉकिंग टू अस. सो नाइस ऑफ यू, बोथ ऑफ यू. बीएनके साहब, निजाम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नमस्कार सर, जय हिंद. नमस्कार. भारत माता की जय. जय हिंद. जय. Jai Sri Ram. Thank you. Thank you, BNK. Thank you very much. All right, so Mr. Modi spoke to Mr. Trump, and please do remember there's a trade delegation from the US which is at the moment over here in New Delhi, and they've almost reached a conclusion. And the 50% tariffs in all likelihood will go. If they don't, Mr. Trump knows what's coming next. What's coming next is Mr. Xi Jinping's visit. अभी एक ही विजिट बाकी है सर, प्रदीप जी. बिल्कुल बिल्कुल. जी जिनपिंग साहब का विजिट है, वो भी आ जाएगा यहाँ पे. भाई हमें कोई इतराज नहीं है, आप पाकिस्तान के साथ जो मर्जी करो, आप पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाओ. आप उनको अभी नए F-16 दे रहे हैं, पता नहीं कितने $1 बिलियन का उन्होंने कोई नया पैकेज अनाउंस किया है. अब भाई शौक से करो, आपको जो करना करो, लेकिन हिंदुस्तान को उंगली मत करो. हिंदुस्तान को अगर उंगली करोगे तो यार वो गड़बड़ हो जाएगी. फिर सीधी सादी बात है. मतलब दिस इज नॉट डन. Let's be very clear. Absolutely. As far as Mr. Trump is concerned, he should understand that. You want to have business with Pakistan, please do, but that business should not impact US interests in India. This is what US congressmen and senators have said across the board. Both Democrats and Republicans have told Mr. Trump, please don't do this. Otherwise, you'll be known in history as the man who drove India away from us. Not only that, you forced India away from us into the hands of our enemies. Now, India does not regard anybody as an enemy. In my personal opinion, even Pakistan is not an enemy. Pakistan is a silly nation. It's a very boring nation. Not worth even talking or Yes, mentioning let's be about. very, very clear as far as Pakistan is concerned. Now and then, when they attack us, we hit them back. This time, we should hit them back longer, so that all this talk of आपके 5 जहाज गिराए या 7 जहाज गिराए, all that should stop. What they should do is they should decimate one of their major cities, like say Rawalpindi. वो नूर खान बेस के आसपास पूरी बेस उड़ा दो, और साथ में जो रावलपिंडी का जो HQ है वो भी उड़ा दीजिए, so that there will be no argument. My point is that I don't know why we stopped why we agreed to a ceasefire at the time that we did. We shouldn't have. We should have hit Rawalpindi HQ. We should have hit the bunker in which that man who calls himself Field Marshal now was hiding, so that there would be no argument. That's it. अभी क्या है, पाकिस्तानियों के पास अभी उम्मीद है. Quite a few of them actually believe their government, in spite of the fact that Pakistan has presented no proof, no evidence at all of having downed even a single, not even a single IAF plane was brought down. Let me tell you this. What else will the people of Pakistan do? They have to bear with this military rule. It is either, as I say, the army chief, you have to listen to him. There's no other way out. Sir, Pakistan is a boring country. सबको मालूम है क्या होता है वहाँ पे. Election होती हैं, some puppet government is elected, फिर the military takes over, then that military guy, the dictator,
he falls foul of the United States of America. He is either murdered or deposed, and then new elections take place. Somebody else becomes prime minister. That prime minister is usually jailed, like say Bhutto was, like Benazir Bhutto was killed, and like Imran Khan is right now in jail. उसके बाद एक और शहबाज शरीफ बन जाता है. तो दो फॉर्मूला उनके पास, कोर्ट मार्शल और मार्शल लॉ. That's it. कोर्ट मार्शल या मार्शल लॉ. That's it. Either you have a court martial against the general, and if you don't succeed, it'll be martial law. He'll take over. He'll take over the country as now Asif Munir has taken over the country. He's got special powers. He's got absolute special powers. And he'll be field marshal for life. Constitution, yes, Constitution he'll be depend field करके. marshal for life. So he's going to protect Mr. Trump's. And he is immune. He is immune to any legal challenge. By the way, वो भी पास करा लिया उसने असेंबली में. और उनका जो पार्लियामेंट है उसको नेशनल असेंबली बोलते हैं वो लोग. लेकिन मेरा ये कहना है कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान इज एन इरिटेंट. How do you deal with irritant? You either use talcum powder, or you use DDT, or you use anti-mosquito repellent or something like that. इस किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी. But as far as the USA is concerned, the USA has to figure out what are their interests. अगर आपके इंटरेस्ट हैं कि आपको पाकिस्तान को बढ़ावा देना है हिंदुस्तान के खिलाफ, that is your interest. If that is what the US think, so be it. We are fine. और खुलेआम बढ़ावा. अरे प्रदीप जी, हम तो गैस पहले वहां भी बनने वाले और इंडिया गैस वहां से खरीदेंगे. अरे प्रदीप जी, और हमारा खरीदना भी होता ही कर लिया. पंडित नेहरू जी ने अमेरिका का पूरा प्रकोप देखा है. हमने कहा जी हम आपके पास नहीं आएंगे. लाल बहादुर शास्त्री ने देखा, इंदिरा जी ने देखा, राजीव गांधी ने देखा, उसके बाद जो 2-3 प्रधानमंत्री बने उन्होंने भी देखा, उसके बाद हमारे नरसिम्हा राव साहब ने भी देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी देखा, और अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा ही. उस वक्त तो सैंक्शंस लगा दी थी हमारे खिलाफ. तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा क्योंकि हम लोगों ने पोखरान 2 किया था, उनका भाई करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो मर्जी करो. इंडिया ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर. वी आर ओनली कंसर्न विद इंडिया, as the Prime Minister said, or in fact as Jaishankar, our External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar keeps repeating, India, the government of India is there to look after the interest of Indians. We are not there to look after the interests of anybody else. भारत के लिए अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा है. भारत के लिए अच्छा नहीं है तो जयराम जी की नमस्कार. All the best to you. That's it. End of story. ये बेसिक चीज है. राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट एज फार एज टुडे शो इज कंसर्न. और अगर आपने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. नेशन नाउ, The fastest growing channel of the nation, Nation Now. और आपको ये भी बता दें कि अभी जाइएगा नहीं. इस शो के एकदम बाद जो कल हम लोग गए थे गिलबर्ट हिल, कैन यू शो अ लिटिल बिट ऑफ दैट? गिलबर्ट हिल जो हम लोग गए थे मोहसिन हैदर साहब के साथ, वो हम आपको पूरा दिखाएंगे. जो अभी अभी बीएमसी के ऊपर डिस्कशन हुआ वो सारा का सारा आपके सामने आ जाएगा. और अगर धरती पे कहीं न रखा तो वो है क्या है कि आपने क्लियर कट बोल दिया है कि भाई हम लोग आपकी मदद नहीं करेंगे. दैट ऑफ कोर्स इज गिलबर्ट हिल. वो गिलबर्ट हिल है, इट इज नेम्ड आफ्टर दैट. उसके ऊपर 2 मंदिर हैं वहाँ पे, दुर्गा माँ के मंदिर हैं 2 हैं, और वो जय भवानी हर हर महादेव. और उसके साथ में यहाँ पर एक वो जनता नगर है, जनता कॉलोनी है. और वो जनता कॉलोनी में मतलब मोहसिन हैदर साहब के साथ हम लोग गए अंदर. प्रदीप जी, इट वाज लाइक हॉरिबल. मतलब इट्स अ हॉरर स्टोरी. Impossible. 20 minutes of water, no sanitation. 20 मिनट्स तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं प्रदीप जी. आप तो बहुत ज़्यादा ही बोल गए. 20 मिनट्स ज़्यादा बोल गए. 20 मिनट्स वो तो कभी बोलते हैं 8 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 6 मिनट. 20 मिनट जिस दिन आ जाते हैं उस दिन तो लॉटरी है सर. मतलब मेरा ये कहना है. तो इट्स एब्सोल्युटली टेरिबल. बट वंस अगेन अपने कमेंट जरूर भेजिए. प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स. और अभी जो क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट का जो मैच चल रहा है वो साउथ अफ्रीका इज आई थिंक बैटिंग एट अबाउट 10 रन्स एन ओवर, जहाँ तक मेरा ख्याल है. मतलब ये तो गड़बड़ हो गई भाई. 147 for 2 साउथ अफ्रीका इन 14 ओवर्स. 148 for 2 इन 14 ओवर्स. मतलब 10 रन से ऊपर का रन रेट है. एंड इंडिया वन द टॉस. India won the toss, Pradeep ji, and put South Africa into bat. I mean, who advised Surya Kumar Yadav to put these guys into bat? ये तो अब बनाएंगे सर 350-400 रन तो बनाएंगे in a T20. I mean, it's like terrible. I don't even know where to begin. It's like absolutely terrible. All right, so that's just about it as far as we are concerned. And once again, Mr. Gautam Gambhir will come out with great excuses. देखा हम पहला मैच जीते थे ना, दूसरा हार गए तो क्या हो गया, and so on and so forth. But all the same, I want this guy to go. I want this Gautam Gambhir really and truly to
go. I mean, he's terrible. He's terrible for morale. He's terrible for everybody. He and Ajit Agarkar don't deserve to be there anyway. That's my opinion. Whatever it is. All the same, good news is Mr. Modi has spoken to Mr. Trump. The US delegation is here, and in all likelihood, we'll have a deal very, very shortly. You need to admire the way Modi is still playing diplomacy. He's still talking to Trump. He's still, putting a lot of on his bruises, the way medicine on his bruises, to see that that's fine. That means he's got only one thing in mind, that the interest of the country. That's it. Because again, look at where Trump, his ego is coming before the nation. His ego is much bigger than the nation. But here we have got a leader who really thinks about the country. For That's the it. country is ready to bow down. Yep. Absolutely. Fantastic. Absolutely. As Vladimir Putin said, Modi is one person who only dreams, breathes and lives India. This is what Vladimir Putin said when he was here. कि मोदी जी वो शख्सियत हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, इंडिया के बारे में सोचते हैं, हिंदुस्तान के बारे में उन जो सांस भी लेते हैं वो हिंदुस्तान की सांस है, और जो जीते हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए जीते हैं. That's what Mr. Trump, Mr. Putin said. So I hope something works out. That will be great. And even if it doesn't, it doesn't. That's it. What can you do? Because we have lived through this before, as I said. We are quite used to this. और सबसे बड़ी बात प्रदीप जी मालूम है क्या है? हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग 156 करोड़ लोग हैं. 156 करोड़ लोग नहीं, 156 करोड़ ग्राहक हैं. It's a market of 156 crore people. That is 1.5 billion people. It's a $1.5 billion, a 1.5 billion market. And everybody has got purchasing power. Let me tell you this. हिंदुस्तान में जो चीज मैन्युफैक्चर होती है वो हिंदुस्तान में ही बिक जाएगी. हमें किसी और की जरूरत नहीं है. ये भी आपको बता दूं मैं. The biggest middle That's class and a The biggest middle class in the world. with the purchasing power that can, That can unthinkable across the sustain. nation. That can sustain Across a the world. 10% growth rate, GDP growth rate now for the next 30 years. सीधी सादी बात है. ये हिंदुस्तान है साहब. और हिंदुस्तान ने बहुत कुछ देखा. ये तो अमेरिका क्या है? हम तो पता नहीं कितने हजारों सालों से देखते आ रहे हैं. कौन आए, कौन गए, कितने लोग आए, कितने लोग गए, अभी तक हम लोग हैं यहीं पे. हिंदुस्तान वैसे का वैसे ही है, भारत वैसे का वैसे ही है, और वैसे का वैसे ही रहेगा. तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है. आप कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है. प्लीज डू सब्सक्राइब टू The fastest growing channel of the nation now. और प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. One thing, Matra. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.